Assalamualaikum everyone. This is Hussain and I am an English teacher. Welcome to my channel Bingo English. So in this video I am going to teach you what? What I am going to teach you? Do you remember it? Last time what did I teach you? Yes, I taught you future continuous. So in this video I am going to teach you future perfect. Yes, and it's an important topic. Why it's important? Because while making essay and while making application letter and so many things, you guys can use this structure, and it's really important, and it's a little bit difficult as well because we use third form and something, some different things are here that you will get to know about, after watching the full video. You will get the idea how you will make the sentence, and if you are able to make the sentence, so then you will be able to use as well. Means while speaking you feel free, you will use it. Still, if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for watching upcoming videos. It means that you will get the notification. So what do you think? Let's begin the video. So now you guys can see I have written definition and formation as well, and with the help of this you will get easy and in a very easy, in a basic and simple way, I will tell you how you guys can be able to make the sentence of future perfect. So let's begin from the definition, and that's going to be really easy. The future perfect tense is used to talk about action that will be completed by a certain future time. Okay, सो मेक इट ईजी. बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही आसान वे में समझाऊंगा मैं. फ्यूचर सेंटेंस जो बनाए जाते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं. जो भी पास में काम हो चुका होता है, जो हो चुका होगा, जो पास में हो चुका होता है, जो हो चुका होगा, आपको पता है कि हाँ ये काम हो चुका होगा, उस सेंटेंस के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं. जैसे कि यार मैं कल अपनी मदर के साथ मार्केट जा चुका हूँगा. I will have gone to market with my mother by tomorrow. Have you got it now? कि मैं कल अपनी मदर के साथ मार्केट जा चुका हूँगा. मैं कपड़े खरीद चुका हूँगा. उसके आने से पहले मैं ये काम कर चुका हूँगा. मैं तुम्हारे पढ़ाने से पहले खाना पका चुका हूँगा, यानी खा लूँगा या पका चुका हूँगा. इस तरीके के सेंटेंस जो आप यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, सो यू गाइज विल बी एबल टू मेक इट्स रियली इजी. सो नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन, देन यू विल गेट द मोर आइडिया अबाउट इट. कि फॉर्मेशन है ये. फॉर्मेशन से आपको आइडिया होगा. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज़ द फॉर्मेशन जो आप विल हैव यूज़ करते हो. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जब हम वर्ब यूज़ नहीं करते और इसमें स्टेट भी यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर मैं कहूँ इसमें वर्ब में हटा दूँ, वो प्रेजेंट सिंपल की बात है. ये फ्यूचर वो प्रेजेंट, मगर मैं एग्जांपल कि मेरे पास गाड़ी होगी. सो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये सेंटेंस कैसे कहेंगे, आई विल हैव अ कार. सो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट है. नहीं, वो फ्यूचर सिंपल का होता है, स्टेट का. मैंने फ्यूचर सिंपल आपको सिंपली मैंने वर्ब एक्शन का पढ़ाया था, स्टेट नहीं पढ़ाया. बट स्टेट में हम यूज़ करते हैं क्योंकि ज़्यादातर हैव जब लग जाता है तो स्टूडेंट समझते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट है. सो दैट इज़ नॉट फ्यूचर परफेक्ट. सो नाउ द सेम थिंग इज़ हियर, बट प्लस नॉट यू विल ऐड इन नेगेटिव. ऑफ कोर्स वी ऑलवेज ऐड. सो and now interrogative we always use will plus subject plus have plus third form plus object. So this is the formation of future perfect, and now I'm going to tell you that how you guys can be able to make the sentence a simple sentence. Kindly try to make a simple sentence. I'm not teaching you in hard way. There are so many ways to teach you, but I have just taken out one way to teach you a simple content, especially for the beginners. Some beginners are watching as well, and if I'm going to teach you in a hard way, like simple future perfect is like in this way you guys can make the sentence, and in this way, no, you guys have to choose one way which you guys can be able to make easily. Okay, so this is the formation, and definition is I made it by myself, that how I can make. That's why I just made you understand. So now first sentence I can write here कि मैंने कहा था बिफोर
I before I go to market, कॉमा ऐड कर दें, my mother will have gone. सिंपल सेंटेंस चूज करा है, बिफोर आई गो टू मार्केट माई मदर विल हैव गॉन. नाउ यू विल टेल मी द ट्रांसलेशन कि मेरे मार्केट जाने से पहले मेरी मदर मार्केट जा चुकी होंगी. बिफोर आई गो टू मार्केट माई मदर विल हैव गॉन. सो और सिंपल सेंटेंस कि यार मैं इस महीने 4 साल गुजार चुका हूँगा, यानी इस कंपनी में 4 साल, इस महीने के बाद मैं 4 साल गुजार चुका हूँगा. ओके, कैसे कहेंगे? आफ्टर दिस मंथ कॉमा आई विल हैव स्पेंड 4 years इन दिस कंपनी. हम बोलते नहीं कि यार इस महीने के बाद मैं 4 साल या 5 साल गुजार चुका हूँगा. सो इन दिस वे यू गाइज कैन मेक, ये थोड़े से बड़े सेंटेंस हैं, बट यू गाइज कैन ईजी रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड एज वेल. आफ्टर दिस मंथ, इस महीने के बाद, आई विल हैव स्पेंड, हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. दिस थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड. सो और सिंपल सेंटेंस अगर मैं इसमें नोट लगाऊँ तो मेरे जाने से पहले खाना शुरू नहीं हो चुका होगा. तो इसको कैसे बोलेंगे? यार मेरे जाने से पहले खाना शुरू नहीं हो चुका होगा, यानी खाना शुरू नहीं होगा. इस तरीके के सेंटेंस में आप बोल सकते हैं बिफोर, नंबर 3, बिफोर आई गो. और इसके अलावा और भी मैं वे बता दूँगा. बिफोर आई गो डिनर विल नॉट हैव स्टार्टेड, या हाँ स्टार्टेड, फाइन, स्टार्टेड, गाना शुरू नहीं हो चुका होगा. और इसके अलावा आप और भी वेज यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 एंड नंबर 4 आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर. और यहाँ पे और आप सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस आप ले सकते हैं, जैसे कि यार कल 4 बजे मैं मूवी देख चुका हूँगा. कल 4 बजे मैं मूवी देख चुका हूँगा. आई विल हैव watched movie, I will have watched movie at 4 a.m. by tomorrow. Fine. In this way you guys can make the sentence that I will have watched movie at 4 a.m. by tomorrow. So now it's up to you that how you guys can make the negative sentence. Now verbally I am telling you कि मैं तुमसे कल मिल चुका हूँगा. आई विल हैव मेट यू बाय टुमारो. बेसिकली टुमारो क्यों यूज़ कर रहा हूँ? ज़्यादातर फ्यूचर की बात की जा रही है, तो कल या आने वाले जो टाइम होगा, फ्यूचर में टाइम होगा, उसी की. हम यस्टरडे की बात नहीं करेंगे इसमें, ना तो प्रेजेंट की बात करेंगे, ना तो यस्टरडे की बात करेंगे. जो आपका काम हो चुका होगा, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन फूड. मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव ईटन फूड. ईटन थर्ड फॉर्म यूज़ करिए. क्या मैं खाना खा चुका हूँगा? विल आई हैव ईटन फूड. क्या मैं तुमसे बात कर चुका हूँगा? विल आई हैव टॉक टू यू. सही है. सो मैं तुमसे बात कर चुका हूँगा, आई विल हैव टॉक टू यू. will आपने यूज़ करना है. with the help of the formation you guys can make a simple sentence. with the help of simple sentence inshallah you will be able to make the hard sentence as well one day. But try to speak 1 and 2 sentence, then you will be able to make a simple sentence and then you can speak hard sentence. So I hope that you must have got all these things whatever I have explained. And still if you haven't subscribed my channel, so please I'm requesting you subscribe my channel and press the bell icon for watching upcoming videos. And if you have any doubt and if you wanna ask anything, so you can do comment as well. Okay, so inshallah we will meet in next video. Take care of yourself. Allah Hafiz.